start with the new subject, that is geography. As we have already discussed the PYQs of history and PYQs of the Indian polity. तो there we have tried to understand that कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हिस्ट्री और पॉलिटी में और कैसे ट्रेंड चेंज होता गया है in the way the questions are being asked by the UPSC. The same thing we will be also doing with the geography as well. As we all know that geography, history, economy and polity, these are the four core subjects of the UPSC exam. मतलब ये चार सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका बेसिक प्रिपरेशन almost all UPSC aspirant needs to study, and in prelims exam as well. Almost around 60 to 70 questions are being asked from this, the four core subject, like around 15 questions from polity, around 15 questions from history, around 15 questions from economy, and around 15 questions are asked from, the polity. And that is why geography को study करना जरूरी होता है. So now I will be discussing only, the core geography question, because geography is again one of the very, very important subject for UPSC exam point of view. There are many other questions of the UPSC, like geography is applied in economy, geography is applied in international affairs, geography is also applied in, environmental studies. Geography is also applied in other subjects as well, even in science and, the technology. बट अब हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, वी विल ट्राई टू डिस्कस ओनली द कोर ज्योग्राफी क्वेश्चन. ज्योग्राफी एप्लीकेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सेट्रा, दैट वी विल डिस्कस इन दैट रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट्स. बट टुडे onwards we will be trying to understand the core geography question. So we will start from 2014 and then we will go to 2025. तो कैसे 2014 से 2015 तक क्वेश्चन चेंज होते चले गए हैं यूपीएससी के द्वारा, दैट्स व्हाट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. एंड वी विल आल्सो ट्राई टू मेक द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स. जैसे हमने हिस्ट्री और पॉलिटी में वी हैव क्रिएटेड अ लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑन व्हिच यूपीएससी इज रिपीटेडली आस्किंग द क्वेश्चन इन अ डिफरेंट वे. The same exercise we'll do here as well. Clear? Can you all see the question paper on your screen? Is it visible to all of you? Yes, sir. Question paper सभी को दिखाई दे रहा है on your screen? Yes, sir. Okay, चलिए. So let's start with the geography question. Some of I will be taking only the core geography question, right? So Core these geography are the means? core geography means जिसमें basic geography हम करते हैं. कुछ questions ऐसे होते हैं समीन जो ज्योग्राफी के एप्लीकेशन होता है, जैसे कि एनवायरमेंटल स्टडीज में वगैरह, वो हम बाद में देखेंगे, बिकॉज दैट वी कैन ओनली डू वंस वी आर फिनिश विद द पूरा ज्योग्राफी. जब हमारा खत्म हो जाएगा तभी हम उसको अच्छे से कर सकते हैं. अभी फिलहाल हम सिर्फ ज्योग्राफी के बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे, राइट. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू ऑन स्क्रीन? Which one of the following pairs of island is separated from each other by 10-degree channel? This was a direct question asked from 11th standard NCERT. Anyone remember 11th standard NCERT geography of India mein in the first chapter of the Indian geography, that is physiographic divisions of India, उसमें हमने डिस्कस किया था कि there are islands in India, that is Andaman and Nicobar Island and Maldives and Lakshadweep Island, Sumatra, Java Island, etc. तो उसमें से कौन सा ऐसा आइलैंड्स है दो सेपरेटेड फ्रॉम द 10-degree चैनल? राइट, दिस इंफॉर्मेशन इज डायरेक्टली गिवन इन 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी. किसी को याद है? हमने पढ़ा हुआ था अंडमान एंड निकोबार. यस, दो चीजें हमने देखी थी. एनसीईआरटी मेंशन अबाउट 9-degree channel. It also mention about the 10-degree channel and it also mentions about the 8-degree channel, right? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 10-degree channel is मतलब कौन से ऐसे आइलैंड्स हैं इंडिया में जो 10-degree चैनल से सेपरेट होते हैं. चैनल मतलब क्या? दो आइलैंड्स के दरमियान जो नैरो वाटर का एक जो चैनल होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द चैनल. तो कौन से डिग्री चैनल से नीचे वाले 10-degree चैनल से नीचे में से कौन से आइलैंड सेपरेट हुए, क्वेश्चन पूछा गया है, राइट. सो ऑप्शंस आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, निकोबार एंड सुमात्रा आइलैंड्स, मालदीव्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड सुमात्रा एंड जावा आइलैंड. तो इसमें निकोबार एंड सुमात्रा आइलैंड तो है नहीं, सुमात्रा एंड जावा आइलैंड इज आल्सो नॉट द आंसर. कंफ्यूजन विल बी देयर between Andaman and Nicobar Island and Maldives and Lakshadweep Island, right? तो we know like इक्वेटोरियल से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे the 0 to 10 then 20 30 ऐसे ये लैटिट्यूड चेंज होते रहते हैं. तो मालदीव्स इज
closer to equator, or Andaman and Nicobar Islands are closer to equator? Sagar, Sir, Andaman Nicobar. are you sure? No, sir, Maldives, Equator के Maldives नजदीक. Maldives and South Lakshadweep Indian are closer. Ocean. Yes. तो Yes. एग्जाम में हमेशा एक कंफ्यूजन होता है कि वेदर मालदीव्स एंड लक्षद्वीप आर सेपरेटेड बाय द 9 डिग्री चैनल और अंडमान एंड निकोबार आर सेपरेटेड बाय द 10 डिग्री चैनल. ये हमेशा एक कंफ्यूजन होता है. तो रिमेंबर, Maldives and Lakshadweep are closer to equator. That is why they are separated by the 8 degree channel or 9 degree channel. While Andaman and Nicobar, they are located away from the equator. That is why they are separated by the 10 degree channel. तो ये आपको ध्यान में रखना, right? So someone has said that the answer is Andaman and Nicobar, right? Nandini, is it you? Yes, sir. Okay. So yes, you are right that the Andaman and Nicobar Islands are separated by 10 degree channel. So what you are supposed to study? I think in 2025 prelims exam also इसी line पे question पूछा गया था that these two islands are separated by which degree channels. तो आपको क्या करना है? NCERT 11th standard NCERT, you need to study or you need to remember that which islands are separated by 8 degree channel, which islands are separated by 9 degree channel, and which islands are separated by the 10 degree channel. आपको एक बार देखना है, याद नहीं रहेगा बट एग्जाम से पहले एक और बार उसको मेमोराइज करना है, ये याद करना है. कंसेप्चुअली अगर रखना है तो अगर आपको याद रखना है तो रिमेंबर, मालदीव्स एंड लक्षद्वीप्स आर क्लोजर टू इक्वेटर. दैट इज व्हाई द आंसर उसका जो होगा वो 8 डिग्री या 9 डिग्री होगा. और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर अवे फ्रॉम द इक्वेटर. दैट इज व्हाई 10 डिग्री चैनल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. व्हाट इज सागर? चलिए, दिस इज अगेन वन ऑफ द वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फैक्चुअल क्वेश्चन which UPSC used to ask in 2014, 15, 16. तो 14, 15, 16 में ऐसा ही क्वेश्चन पूछने का पैटर्न था. They were asking the direct questions and you were supposed to study from the NCERT. Is it clear? चलिए, now next question है, consider the following pairs. The program is run by which ministry? कल के ही न्यूज़पेपर में हमने एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा रन किया जा रहा है हमने कल डिस्कस किया था. Anyone remember? Which program is going to be started by the union government? It's related. कल के न्यूज़पेपर में एक ऐड आई हुई. A very full page ad was there in Indian Express. Yes, Nagar. Census, sir. Census of India carried by which ministry? क्या? Home Office. Yes, MH. Ministry of Home Affairs, MH, right? तो न्यूज़पेपर के जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं उस एडवर्टाइजमेंट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसे जो क्वेश्चंस है ना वो आपको सॉल्व करना इजी हो जाता है. तो many times what happens, the UPSC is asking the question that which program is run by which ministry. Now this program, since it is associated with the geography, means associated with the environmental issues, so drought prone area program मतलब जहां पर ड्रॉट्स होते रहते हैं ऐसे एरिया को प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा प्रोग्राम शुरू किया गया. सो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम run under the Ministry of Agriculture or not. Second, desert development program run by the Environmental Forest Ministry. Last, national watershed development for rainfed areas, whether this project is run by the Ministry of Rural Development or not. ये क्वेश्चन पूछा गया in the match the pair category. Which of the above pairs are correctly matched? Nowadays UPSC is not asking question like which of the above pairs are correctly matched. Instead of that, what they are asking? How many pairs? Yes, how many pairs are correctly matched. तो आंसर जब which of the above पूछा जाता है तो आंसर थोड़ा सा अलग हो जाता है, and which of the above जब पूछा जाता है तो the answer is different, right? So here the options are 1 and 2 only, 3 only, 1, 2 and 3 only, and none of the above pairs are correctly matched. ऐसे ऑप्शन दिया गया है, right? So today you will, अभी आपको क्या करना है, इसका आंसर क्या है ऑफिशियल आंसर की में we will confirm it, but what you need to remember that कि as a UPSC aspirant you need to know कि कोई भी गवर्नमेंट की जब स्कीम न्यूज़पेपर में आती है या न्यूज में आता है, जब उसके बारे में डिबेट और चर्चा होती रहती है तो सबसे पहले चीज, द फोरमोस्ट थिंग व्हिच विल यू डू एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, दैट यू विल सी दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम इज रन अंडर व्हिच मिनिस्ट्री. तो वो प्रोग्राम कौन से मिनिस्ट्री के तहत रन किया जा रहा है आप देखेंगे. सो 2025 and 26 ऑलमोस्ट ऑल द गवर्नमेंट स्कीम, जितने भी सारे गवर्नमेंट स्कीम है, whether it is related to environmental issues, whether it is related to IT, employment, internal security, etc. कोई भी हो, तो सबसे पहली चीज जब भी कोई गवर्नमेंट स्कीम आएगी you will check it out
that under which ministry that program is being run. Now, this question was asked in 2014 because these programs were run by the government at that time. But आपको अभी क्या करना है? If you want to appear for 2026 prelims exam, you need to check it out. The government scheme which has been started recently means 2025-26, and अगर कोई नई स्कीम है, नई स्कीम अगर लॉन्च किया गया, अगर कुछ नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो you will be definitely see that under which ministry that program is being run. Is it clear? इससे रिलेटेड भी कुछ थंब रूल है with respect to the ministries, that how to identify whether that is being run under that ministry or not. There are certain thumb rule, but I'll explain that thumb rule to you in 23, 24 and 25 question paper, not here, because यहाँ पे वो thumb rule apply नहीं होता. In 2014 question the thumb rule is not applied. Clear? तो टॉपिक समझ में आ गया? Please note it down. The government schemes and the ministry is run by that. Especially अगर climate से related, geography से related अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम रन अगर किया जा रहा है, तो दैट्स व्हाट यू नीड टू चेक इट आउट. एनी डाउट्स अबाउट दिस क्वेश्चन? समझ में आ गया? पीवाईक्यू क्यों देखना है? बिकॉज आपको पता चल जाता है कि जब भी आप न्यूज़पेपर में कोई न्यूज आती है तो हमें क्या फोकस करना है. तो हमें सबसे पहले चीज क्या फोकस करनी होती है? दैट प्रोग्राम इज रन अंडर विच मिनिस्ट्री, आपको देखना होता है. इज इट क्लियर टू यू? चलिए, now let's move on to the next page. I will be checking only the core geography question. There is one question number 9. Although it is not geography but environmental से related ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. दाम्पा टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में लोकेटेड है? मिजोरम. गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन द सिक्किम, एंड सारामती पीक लोकेटेड इन नागालैंड. तो अभी आपको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा गया. That tiger reserves are the part of the environmental studies, while the name of the state is the part of what? It is the part of the the geography, right? So Mizoram, Sikkim and Nagaland, all these are the states located in the northeastern part of India. कल हमने देखा हुआ था एक क्वेश्चन, there was one question that कि how many national parks are located in Arunachal Pradesh? You remember that? Arunachal Pradesh, the capital of the Arunachal Pradesh is named after a fort. And there are 2 national parks are located in Arunachal Pradesh. ऐसे स्टेटमेंट दिया गया था. तो एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट जब आप रिवीजन करते हो तो सबसे पहले तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर टाइगर रिजर्व, मतलब ये टाइगर रिजर्व क्या है, व्हाट आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एंड ये पीक मतलब माउंटेन पीक वगैरह क्या होते हैं. दैट्स व्हाट विल स्टडी इन एनवायरमेंट. एंड इंडिया के कौन से स्टेट में कौन से टाइगर रिजर्व हैं, इंडिया के कौन से स्टेट में कौन से नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उसकी एक अलग से लिस्ट होती है. आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द लिस्ट ऑफ द नेशनल पार्क्स एज वेल एज द स्टेट्स इन विच दे आर लोकेटेड. दैट विल बी अ लास्ट टाइम रिवीजन फॉर यू, बट यू नीड टू रिमेंबर दैट कि अगर न्यूज़पेपर में कोई ऐसे नेशनल पार्क से रिलेटेड अगर कोई न्यूज में आता है, स्पेशली यूपीएससी आस्क द क्वेश्चंस ऑन दोज नेशनल पार्क्स व्हिच आर इन द न्यूज, राइट? तो जो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या माउंटेन पीक या बायोस्फीयर रिजर्व जो न्यूज़पेपर में किसी वजह से मे बी फॉर अ पॉजिटिव रीजन और मे बी फॉर अ नेगेटिव रीजन अगर उसका नाम अगर न्यूज़पेपर में आ रहा है, तो यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट? लिस्ट ऑफ द नेशनल पार्क, लिस्ट ऑफ द टाइगर रिजर्व, लिस्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच आर इन द न्यूज, राइट? तो न्यूज में जो इस तरीके के टाइगर रिजर्व या एनवायरमेंटल रिलेटेड साइट्स अगर न्यूज में आते हैं तो आपको अलग से बनाना होता है. आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द लिस्ट फॉर 2026 एग्जाम. मतलब पिछले 1-2 सालों में जो नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व एज वेल एज टाइगर रिजर्व जो न्यूज में थे, आई विल बी प्रोवाइडिंग टू दैट. नॉट ओनली दैट, वो अगर वो न्यूज में है तो वो किस वजह से न्यूज में था, व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ दैट टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है. कौन से स्टेट में है ये तो आपको पता ही होना चाहिए, but what are the unique features that particular tiger, that particular national park is dedicated for which animal, that also you need to know. Is it clear? Yes, sir. Now let's move on to the next page. Next question. Yes, question number 13. This is a core geography question जो fundamental से physical geography वाले क्लास में हमने डिस्कस किया था. I know many of you have not attended the fundamentals and physical geography class, and few of you have already attended. तो जिन्होंने attend किया है उनके लिए एक idea है कि revision करते वक्त में कौन से चीजों पे फोकस करना है. Those who have not attended my basics of geography class, don't worry.
when I will be taking the geography class once again, fundamental physics and geography, तो आपको एक आइडिया आ जाती है कि उस समय में आपको क्या फोकस करना है. The question is, which of the following phenomena might have influenced the evolution of organism? Evolution of organism. स्कूल में आपने शायद पढ़ा होगा theory of evolution. Any idea who has given this theory of evolution? You know, डार्विन मानवीय उत्क्रांतीचा सिद्धांत कोणी दिलेला होता? डार्विन सर. And what is that, theory of the evolution of organism, which has been given by Charles Darwin? काय होती थी theory, काय होती? सागर, any idea? सागर, रचना, स्कूल में जब आप थे शायद आपने उस समय में पढ़ा होगा मानवीय उत्क्रांतीचा सिद्धांत किंवा theory of evolution of organism. What exactly it was? Yes, सागर. सर इवोल्यूशन ऑफ स्पेशीज उन्होंने जब थ्योरी दिया था उसमें जो इनिशियली होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस एंड अभी जो है होमो इरेक्टस एंड होमो सेपियंस, ऐसा कुछ उन्होंने इवोल्यूशन बताया था सर, इंसान का कैसा हुआ है. ओके, बट उसके पहले भी उन्होंने बताया था कि द लाइफ ऑन द अर्थ स्टार्टेड विथ अ सिंगल द सेल, द ऑर्गेनिज्म, लाइक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, दैट इज अमीबा. देन अमीबा से फिर थोड़े मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. दैट मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अगेन गॉट डिवाइडेड इनटू एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ the animals and plants, living organism developed. That this is what is called as evolution of organism. Evolution of human being, you are right. The evolution of human being is from Homo sapiens से शुरुआत होता है. So Homo sapiens is the end. Homo Neanderthal man, वहां से शुरुआत होता है. बट यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि कौन से नीचे में के जो एक्टिविटीज हैं, जोग्राफिकल फेनोमेना जो है, वो इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस किया गया होगा, राइट? तो चार्ल्स डार्विन ने बताया था कि एज पर द क्लाइमेट चेंज, एज पर द geography change, the organisms got adapted themselves as per the changing environment. Do you know that? Changing environment के तहत plants, animals adapt themselves. अब यहाँ पे इंटरलिंक करके क्वेश्चन पूछा गया है that which of the following phenomena might, जब ये ऐसे पूछा जाता है, might का मतलब क्या है? हो सकता है. might have influenced the evolution of organism. Not 100% sure, बट हो सकता है कि इस जोग्राफिकल फेनोमेना की वजह से ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन में क्या हो गया होगा, इन्फ्लुएंस किया होगा. तो माइट जैसे शब्द जब इस्तेमाल किया जाता है, माइट या कैन, राइट? सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट. बट दिस इज जस्ट कॉमन सेंस, राइट? बिकॉज 100% श्योर तो कोई बता नहीं सकता उस रिस्पेक्ट टू दैट. सो अब ऑप्शन दिया गया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हमने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ था. यू रिमेंबर दैट सागर? व्हाट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट? That continents have broken into 7 different the continents and it has drifted. और उस समय में हमने देखा था कि in support of the continental drift, Alfred Wegener has given certain the evidences about the fossils of the organism found in the coastal margins of Africa and Latin America. So continental drift हो सकता है, it might have influenced the evolution of organism, right? Second, glacial cycle. Glacial cycle मतलब क्या? Glaciers. ग्लेशियल्स मीन्स ह्युमन जे असतात, म्हणजे ग्लेशियर जे असतात, तो ग्लेशियल सायकल मतलब समटाइम्स द होल अर्थ इज कवर्ड बाय द आइस एंड समटाइम इट इज बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, द आइस जो कवर था ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट हैज गॉट मेल्टेड. तो क्या ये ग्लेशियल साइकिल विद थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस कर सकता है? यस. कॉमन सेंस है, दोज ऑफ स्टडीड द बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट, दिस इज दैट कि बोथ ऑफ देम हैव the influence. So answer of this question is both 1 and 2. So this is a fine example that how UPSC test your subject the knowledge, मतलब interlinking knowledge आपका कैसे है वो यहाँ पर चेक करा. Evolution of organism is a different subject, while continental drift and glacial cycle is a topic of core geography. but ये geographical phenomena का evolution of organism से क्या लिंक हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी नॉर्मली पूछता है. बट यहाँ पे थंबनेल मैंने आपको बताया कि माइट या कैन ऐसे जब वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. इज इट क्लियर? So we have already studied what is continental drift, and we have already studied what are glacial cycle and how the glacial cycles influences the
formation of the different types of landforms on the surface of the earth. That's what we studied in fundamental geography. जिन्होंने नहीं किया, don't worry, I'll explain it to you. Yes, Sagar, you are saying something. सर अगर इसमें एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी एक एग्जांपल होता तो दैट कुड बी आल्सो करेक्ट. Of course, plate tectonics theory could also influence, or it might have influenced the evolution of the organism. All geographical phenomena has influenced the evolution of organism. Got it, Sagar? Yes. Chal. Now let's move on to the next question. Question number 19. Which of the following adds carbon dioxide to the carbon cycle on the planet of the Earth? Now, this is not a question of core geography again, but it is an application based geography. तो उन्होंने पूछा कि नीचे में से कौन से एक्टिविटी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है इन द एटमॉस्फेयर. कल ही हमने डिस्कस किया हुआ था. यू रिमेंबर yesterday we have discussed about global warming and climate change in geography class. जब कार्बन डाइऑक्साइड जब ऐड होता है एटमॉस्फेयर में, it leads to what? It leads to the global warming. And नीचे में से कौन सी वजहों से कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है on the planet Earth? This is what is the question asked here, right? Few days back we have discussed that in, I think, one of the important island, अमेरिका में एक island है called Hawaiian Island. तो Hawaiian Island में क्या हुआ है? There was volcanism. Even in India also, one of the dormant volcano has got activated. तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें न्यूज़पेपर में आया हुआ था दैट वोल्केनिक इरप्शन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ऐड हो जाता है इनटू द एटमॉस्फेयर. यू रिमेंबर दैट सागर? सो क्वेश्चन ये पूछा गया है that which among the following adds carbon dioxide to the carbon cycle. So volcanic action, yes, this is true. This has also been explained in NCERT और even GC Leong में भी explain किया गया था that volcanic eruption leads to the addition of carbon dioxide. It leads to the addition of methane. It also leads to the addition of ash, right? कुछ ash होते हैं. I don't remember exactly what is the name of that ash, but उससे क्या हो जाता है, global warming or climate हो जाता है, right? Now second option is called as respiration. All of you know what is respiration? स्कूल लेवल में आपण पढ़ा रेस्पिरेशन. मराठीमध्ये आपण रेस्पिरेशनला श्वसन किंवा श्वासोच्छ्वास असं म्हणतो, राईट? येस. तो शाळेमध्ये तुम्ही स्टडी केला असेल ना रेस्पिरेशन में, वेदर वी इनहेल द कार्बन डाइऑक्साइड और वी इनहेल द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इनहेल करते. We inhale the oxygen and what we give as a out product, मतलब ऑक्सिजन आपण आत घेतो आणि बाहेर काय सोडतो, कार्बन डायऑक्साइड, राइट? ऑक्सिजन आत घेतो आणि कार्बन डायऑक्साइड बाहेर सोडतो. म्हणजे आपण इनहेल केलेला जो ऑक्सीजन है दैट गेट्स रिएक्टेड विद द कार्बोहाइड्रेट्स व्हाट वी ईट. लाइक जो भी हम चीजें खाते हैं, चाहे वो व्हाटएव्हर वी ईट, लाइक वी ईट राईस, काही पण आपण जेवढं काही जे काही आपण अन्न खातो त्या अन्नामध्ये कार्बोहायड्रेट्स असतात आणि त्या कार्बोहायड्रेट्सच्या सोबत ऑक्सिजनचा काय होतो, रिएक्शन होतो आणि ॲज अ रिझल्ट ऑफ दॅट कार्बन डायऑक्साइड इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर. तो रेस्पिरेशन ऑल्सो लीड्स टू व्हाट, एडिशन ऑफ द कार्बन डायऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर, राइट? सेकंड, photosynthesis. So photosynthesis is exactly opposite to respiration. In photosynthesis, carbon dioxide is absorbed by the plants. It is absorbed by the plants and the oxygen is released by the plant, right? तो ये absorption होता है. तो यहाँ पर carbon dioxide is released, it is added to the atmosphere or it is absorbed from the atmosphere. कॉमन सेन्स आहे. म्हणजे वाटतं 8वी 9वी 10वीच्या विद्यार्थ्याला देखील ह्या प्रश्नाचं उत्तर काढता येऊ शकतो. युपीएससी मध्ये जे प्रश्न येत असतात ते युपीएससी मधले प्रश्न खूप काही अवघड असतात असं नाही. म्हणजे आपण जे 10वी 12वी पर्यंत जे काही आपण स्टडी केलेल्या बेसिक त्याच्याशीच रिलेटेड प्रश्न असतात, फक्त आपल्याला इंटरलिंक करता यायला पाहिजे. गॉट इट नंदिनी? शाळेमध्ये असताना तुम्ही वाचलं असेल फोटोसिंथेसिस म्हणजे काय? फोटोसिंथेसिसला मराठीमध्ये आपण काय म्हणतो? प्रकाश संश्लेषण. प्रकाश संश्लेषण. यू स्टडीड फ्रॉम मराठी मीडियम और इंग्लिश मीडियम? नंदिनी, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया वाचल्या शाळेमध्ये असताना? प्रकाश संश्लेषण. वेरी गुड. तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब किया जाता है. तो ये बेसिक चीज अगर आपको पता है, यू कैन इजीली फाइंड आउट आंसर. सो फोटोसिंथेसिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन. तो फोटोसिंथेसिस अगर रॉन्ग है तो आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? व्हाट इज द एसओपी फॉर सच टाइप ऑफ द क्वेश्चंस? अगर आपको एक रॉन्ग ऑप्शन अगर मिल जाता है तो आई टोल्ड यू व्हाट इज द एसओपी. यू नीड टू एलिमिनेट डी, यू विल एलिमिनेट ए. अब ऑप्शन रह गया टू ओनली. टू ओनली आल्सो यू कैन एलिमिनेट.
Why you can eliminate 2 only? Because हमें पता है कि volcanic action से भी क्या होता है, carbon dioxide is added. So you can mark 1, 2 and 4 and move on to the next question, right? So let's see whether the fourth option is also correct or not. Fourth option दिया गया decay of organic matter. अब देखिए decay of organic matter ये थोड़ा सा those who are specialists in environmental studies और जितने 11th 12th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी पढ़ा या ग्रेजुएशन में बायोलॉजी या एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ा, उन्हें पता होगा कि ये डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है नहीं होता, उन्हें पता है. बट यूपीएससी इज हेल्पिंग यू in finding out the answer in this particular question, and what is expected in this particular question from UPSC is that whether you know the process of photosynthesis and whether in photosynthesis the carbon dioxide is released or carbon dioxide is absorbed. ये UPSC आपसे expect कर रहा था. But anyways, those who have studied 11th 12th standard science और graduation में जिसने science पढ़ा उन्हें पता है कि decay of organic matter. Decay of organic matter म्हणजे काय? Organic matters like plants, animal, these are the organic matters. जब इनकी डेथ हो जाती है तो there is a decomposition. मतलब हे जे काही बायोटिक कंपोनंट्स आहेत एन्व्हायरमेंट मध्ये, प्लांट्स आणि एनिमल, त्यांची डेथ झाल्यानंतर काय होत असते, त्यांचा डिके होतो. यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिके? डिके होना म्हणजे काय? डिके मीन्स हाँ डिकम्पोजिशन हो जाता है. और जब वो डिकम्पोजिशन हो जाता है तो ऑफकोर्स उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, बिकॉज plants and animal body are having carbohydrates. These are made up of protein, and proteins are nothing but the carbohydrates, right? So decay of organic matter, decay of the organic matter is done via what? It is done via decomposers. आपल्या एन्व्हायरमेंट मध्ये, आपल्या इकोसिस्टम मध्ये काही डिकम्पोजर्स असतात, काही किडे, काही बॅक्टेरिया, काही आपण काय म्हणतो काही डिकम्पोजर्स आहेत, काही म्हणजे आपल्या मतलब क्रिएटरने ज्या विश्वाच्या ज्यांनी निर्मिती केलेली आहे त्यांनी असा एक सिस्टम क्रिएट केलेला आहे की जेव्हा एखादा प्लांट आणि अॅनिमलची डेथ होते तर त्याच्या डिकम्पोजिशनसाठी, त्याच्या डिकेसाठी त्यांनी काही ऑर्गॅनिझम डेव्हलप केलेले आहेत, like, and that when they are breaking down those dead animal or dead the plant, what happens? There is a release of carbon dioxide. Is it clear? So this is also correct. The correct answer of this question is 1, 2, 4. Here this question is not of core geography but geography linked with environmental studies. Is it clear? Yes, sir. Chalo. Now let's move on to next question. All these are geography question. ये आप बाद में हम environmental studies जब हम पढ़ेंगे तो that at that time we will discuss it. I'm just trying to find out अगर कोई question geography application based है and या core geography का question है, core geography का question है, that also that is only we are discussing now. Geography application मतलब ये geography का कुछ ऐप भी है क्या मोबाईल में? एप्लिकेशन का मतलब होता है समीन म्हणजे एखादा विषय आपण कुठेतरी अप्लाय करतो. मराठीमध्ये आपण काय म्हणू त्याला? ऍप्लिकेशन मीन्स नॉलेजचा यूज करणे, त्या नॉलेजचा यूज त्या पर्टिक्युलर सब्जेक्ट मध्ये करणे. करेक्ट? हाँ. ओके. Now question number 34. Sir, Geography question but current affair question. If I am missing any question, please let me know. Yes, sir. 17. Question number 17, 17. Okay. Yes, sir. Now these are ecology and ecosystem question. Sorry, Nagratna. We will discuss it because bats, bears and rodents. ये कौन से एनिमल किंगडम से आते हैं, इसे पूछा है उन्होंने. These are the environmental studies, ecology and ecosystem. So when we do the ecology and ecosystem topic, then we will discuss it. Yes, sir. Okay. Let me go through the question number 34. Question number 34, is it visible to all of you on your screen? Question number 34. ये geography का question है, world geography, but linked with current affairs. किससे related है? Current affairs से linked है, right? तो recently a series of the uprising of the people referred to as the Arab Spring originally started from. So in 2013-14 एक अरब स्प्रिंग नाम का एक फेनोमेना हो रहा था in the Middle East and West Asia and some of the countries. तो क्वेश्चन पूछा गया, a series of the uprising people referred to as the Arab Spring, नीचे में से कौन से कंट्री से ओरिजिनेट हो गया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा था. डू यू रिमेम्बर जब भी न्यूज़पेपर में कोई कंट्री का नाम आता है ऑन वर्ल्ड पेज
I asked you to go and check it out where exactly that is located and why that particular country is in the news. जैसे कि in yesterday's newspaper, I have asked you to go and check it out where exactly Lebanon is located. Lebanon. Remember why Lebanon was there in the news yesterday? It was in the news because Israel has started, acquisition of Lebanon via land route. उसकी वजह से न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई थी, right? Many such countries news are coming in the newspaper, like the Venezuela, the names of the country, many African countries also. अगर वहां पे अगर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो रहा है, जैसे कि वहां पे मिलिट्री अपराइजिंग हो रहा है, या सिविल वॉर हो रहा है, या वहां पे वल्केनिज्म आ रहा है, या वहां पर किसी भी तरीके का अगर कुछ हो रहा है, तो अगर न्यूज़पेपर में उस कंट्री का नाम आ रहा है तो यू नीड टू नोट इट डाउन. अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था इन 2013 देयर वाज अ अरब स्प्रिंग, मतलब सम ऑफ द कंट्रीज, जैसे अभी हमने देखा हुआ था जेंजी रिवोल्यूशन, राइट? जेंजी रिवोल्यूशन कौन से कंट्री से शुरुआत हुआ था? एनी आइडिया? Which of the following country has नेपाल. experienced a Genji revolution? ऐसा similar question 2026 में पूछा जा सकता है. Genji revolution, right? जैसे ये Genji revolution हुआ है in Nepal, it has happened. It has also happened in some of the countries like Bangladesh. बहुत सारे ऐसे countries में हुआ था. तो ये अरब स्प्रिंग नाम का स्प्रिंग 2013 में सम ऑफ द अरेबियन कंट्रीज में हो रहा था, तो इस वजह से क्वेश्चन पूछा गया था. तो आई थिंक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ट्यूनिशिया. ट्यूनिशिया में ये हो गया था, उसकी वजह से क्वेश्चन पूछा गया था. बट एनीवेज क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? मतलब जब भी कोई फेनोमेना अगर हो रहा है, इस तरीके का अगर कोई एक्टिविटी हो रहा है और अगर वो न्यूज में आ रहा है, तो यू विल गो एंड चेक इट आउट वेयर एग्जैक्टली दैट कंट्री इज लोकेटेड. इज इट क्लियर? चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 35. नेक्स्ट क्वेश्चन मैप रीडिंग का क्वेश्चन है. नाउ दिस इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ मैप रीडिंग ऑफ ज्योग्राफी. मैप रीडिंग मतलब जब भी कोई कंट्री का नाम, किसी सिटी का नाम, किसी प्लेस का नाम अगर न्यूज़पेपर में आ रहा है, इमीडिएटली यू आर सपोज टू गो एंड चेक इट आउट ऑन दैट डे इटसेल्फ. मतलब उसी दिन आपको जाकर देखना होता है कि वो कंट्री या वो सिटी कहां पर लोकेटेड है. अंडरस्टूड इकरा? इज इट क्लियर टू यू? This is the reason why I asked you to go and check it out where that exactly city, country is located in the map. जब भी कोई कंट्री का नाम न्यूज़पेपर में आता है तो आपको ये क्यों करना है, समझ में आ गया? रक्षिता, नंदिनी, जयेश, अंबिका, इज इट क्लियर टू यू? श्वेता? एंड आई सपोज यू पीपल हैव स्टार्टेड दिस नाउ. अभी आप लोगों ने इस प्रोसेस को शुरुआत किया है, आपको करना होता है. नॉट ओनली इन न्यूज़पेपर, मतलब मैं बता रहा हूं इस वजह से आपको करना ऐसे नाही आहे. इवन वेनेवर यू आर रीडिंग बाय युअरसेल्फ, जेव्हा तुम्ही सेल्फ स्टडी करत असता, जेव्हा तुम्ही स्वतः वाचत असताना देखील जर एखाद्या अशा देशाचं नाव, एखाद्या अशा प्लेसचं नाव जर आलं असेल आणि यू डोंट नो वेअर एक्झॅक्टली दॅट पर्टिक्युलर द कंट्री इज लोकेटेड, you will go and check it out. Yesterday I have asked you to go and check it out where Cameroon is also located. Anyone remember? Lebanon and Cameroon. You remember that? Why Cameroon was in the news yesterday? वहाँ पे 14th WTO का समिट होना जा रहा है सर, मिनिस्टरियल लेवल पे. Yes, ministerial conference is being held in Cameroon, right? तो चाइना लेड इनिशिएटिव वहां पे लिया जा रहा है. Which China led initiatives are being taken in Cameroon? Something related to fund. IFD. Yes, like infrastructure IFD facilitation, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फैसिलिटेशन, ऐसा ही कुछ है. तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो जब भी ऐसा कोई न्यूज आता है तो आपको क्या करना होता है, उसका एक अलग से सेपरेट आपको नोट्स बनाने होते हैं. इज इट क्लियर? चलिए, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट. इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट, ऐसा. IFD. ओके, ठीक. Next question, which of the above are the members of the Arctic Council? Was Arctic Council in the news? न्यूज़पेपर में आया हुआ था with respect to Greenland. Greenland न्यूज में था, याद है आपको? Greenland was in the news. Some of the Arctic Council countries like Denmark, Sweden, Finland, right? Then Russia. These are the countries are called as Arctic Council because they are bordering the Arctic Sea. Arctic Sea कहाँ पर है? North Pole और South Pole? North Pole. North Pole, right? तो क्वेश्चन पूछा गया which of the above are the members of the Arctic Council. ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. These are the question of international organization but connected with the geography, right? So Denmark, Japan. Can Japan be a part of the Arctic Council, सागर? क्या जापान आर्कटिक काउंसिल के आसपास में है?
No, sir. I also think so. I can eliminate Japan. जापान तो नहीं है, बट रशिया, यस रशिया इज देयर, रशिया आर्कटिक काउंसिल के पास में, डेनमार्क इज देयर, यूके आई एम नॉट वेरी श्योर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो सकता है बिकॉज अलास्का, ऊपर वाला जो हिस्सा है Yes, अलास्का, sir. Canada दैट के इज, ऊपर. यस, तो दैट इज आल्सो हो सकता है, बट अगर जापान नहीं है, इफ वी कैन एलिमिनेट 2 and we can eliminate B, the answer would be either 1, 4 and 5, that is Denmark, UK and नहीं, रशिया तो है 100%, तो आंसर विल बी 1, 3 and 5. दिस इज हाउ आई कैन फाइंड आउट आंसर बाय एलिमिनेशन. इज इट क्लियर? बट एनीवेज, आपको क्या करना है, इस तरीके के जो आर्कटिक काउंसिल जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन के नाम होते हैं वो एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेटेड, यू नीड टू गो एंड चेक इट आउट, राइट. वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, आर्कटिक काउंसिल या बिम्स्टेक, सेंट्रल एससी ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जब भी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है और किसी कंट्री का नाम न्यूज़पेपर में आता है तो एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेटेड है, हु आर द मेंबर्स ऑफ दैट, that's what you need to check it out by yourself. Is it clear? Yes, sir. चल, let's move on to the next page. Again 36 world geography का क्वेश्चन है, but again current affair question. Consider the following pairs: region in the news and country. Do you remember न्यूज़पेपर के वर्ल्ड अफेयर्स वाले पेज में आई ऑलवेज डिस्कस विथ यू कि कोई अगर प्लेसेस न्यूज में है तो प्लेसेस से न्यूज में आपको एक अलग से लिस्ट बनानी होती है. So these are the questions of 2014 and उस समय में ये जो regions हैं like चेचन्या, दारफूर and स्वात वैली, all these were in the news at that time. तो उस समय में जो न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ रहे थे उन्हें ये पता था. अब पिछले कुछ दिनों से the countries like Israel, Iran, the Lebanon, then Ukraine, then Southeast Asia, अफगानिस्तान, ये न्यूज में है, तो वहां के अगर कोई प्लेसेस अगर न्यूज में है तो वो आपको कलेक्शन लिस्ट बनानी है. तो यहाँ पे पूछा गया चेचन्या. चेचन्या इज लोकेटेड इन विच? चेचन्या इज लोकेटेड इन रशिया. दिस इज करेक्ट. ये न्यूज़पेपर में उस समय में आ रहा था. आपको मे बी अभी ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा है. दिस क्वेश्चन मे बी लुकिंग वेरी डिफिकल्ट टू यू, बट इट वाज इजी provided if you were reading the newspaper in 2013-14, right? तो if you are reading newspaper on regular basis, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में इजी हो सकते हैं, राइट सागर? आई थिंक सागर के लिए these are Yes. बोनस क्वेश्चन फॉर यू, राइट सागर? ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान चले जाते हैं बिकॉज यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर रेगुलरली. एम आई राइट? Yes. Yes. Chechnya. Then second is Darfur. Was it in Mali? Mali is again one of the African country. And Swat Valley in Iraq. Swat Valley is not in Iraq. Swat Valley, I think it is in Afghanistan. तो ये थर्ड स्टेटमेंट अगर आपको पता है, सॉरी, पाकिस्तान सर. पाकिस्तान, यस, पाकिस्तान अफगानिस्तान के आसपास में है. तो ये अगर रॉन्ग है then you can eliminate this, you can eliminate this, you can eliminate this. So answer will be one only. Chechnya, Russia is only correct. Darfur is not in Mali. Darfur, just check it out, confirm it where exactly it is located. Darfur. I'm very sure it is not there because Sir, it is elimination in methods. Sudan. Sudan, very good. So that's what is also in the news. South Sudan and North Sudan, उस समय में they are at the war with each other. That is why it was in the news. तो ये बहुत आसान था आपके लिए आंसर फाइंड आउट करना. अगर आपको ये पता है कि स्वैट वैली इज नॉट इन इराक, it is in Pakistan, then it is very easy to find out the answer of this question, right? Nagaratna, is it clear? Yes, sir. The question looks difficult, but एग्जाम हॉल में आपको आंसर कैसे फाइंड आउट करना है इसकी आपको प्रैक्टिस करना है. यू नीड टू प्रैक्टिस इट एंड बिलीव मी, अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में आपको आंसर कोई नया लगेगा ही नहीं, राइट? बट अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर दैट कि व्हेन यू आर सॉल्विंग the question should be at the standard of the UPSC. Is it clear? Chalo. Now let's move on to the next question. Okay, these are mineral resources related question, but still we'll try to understand. This was again a question related to the application based geography. ये हमने किया नहीं है. Next topic after climate, we will be taking going to the next topic, that is the mineral resources distribution in India. So with reference to the two non-conventional energy sources, non-conventional energy sources मतलब अपारंपरिक ऊर्जा साधने, तो coal bed methane and the shale gas, these were in the news. Consider the following statement.
तो coal bed methane is a pure methane gas extracted from the coal seams, while shale gas is a mixture of the propane and butane only that can be extracted from the fine grained sedimentary rocks. तो ऐसे क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो what we do? What is the SOP for such type of question? We'll try to find out what Skip कर likely mistake of such type of likely mistake in such type of statement. ऐसे स्टेटमेंट में likely mistake होने के चांसेस क्या है वो हम फाइंड आउट करते हैं. गौरी सागर, यस सर, मतलब टिप हम ऐसे लेंदी क्वेश्चन को स्टेटमेंट करेंगे होगा जो तो बहुत लेंदी होंगे और पॉलिटी में. दैट इज एप्लीकेबल टू पॉलिटी, नॉट फॉर ज्योग्राफी. सागर, okay. Anyways, so we'll try to understand. Coal bed methane is a pure methane gas extracted from the coal seam, while the shale gas is a mixture of propane and butane only that can be extracted from the fine generated sedimentary rock. तो यहाँ पर कोई likely mistake होने के chances हैं? दो ऑप्शन है. नॉर्मली यूपीसी क्या करता है, कभी कभार वो एक्सचेंज करता है, रिवर्स देते हैं सर, रिवर्स देता है. एंड ओनली वर्ड इस्तेमाल किया गया है ब्यूटेन एंड प्रोपेन ओनली. तो दैट कुड बी आल्सो हिंट दैट कि दिस स्टेटमेंट कुड बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट. सेकंड स्टेटमेंट है इन इंडिया अबंडेंट the coal bed methane sources exist, but so far no shale gas sources have been found. This is also what wrong, because हमने देखा हुआ है ऐसा जब वर्ड इस्तेमाल किया जाता है abundant, the resources available in India, abundant coal bed but no shale gas. Shale gas इंडिया में मिला ही नहीं है. In fact, it is wrong. India has got a huge amount of the shale gas, but we have a less amount of the methane. Methane इंडिया में बहुत कम है, because methane is a kind of natural gas. LPG gas, LPG में मीथेन होता है, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, तो इंडिया में कम है, लेकिन शेल गैस इंडिया में बहुत ज्यादा है. तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग. द आंसर विल बी नीदर वन नॉर टू, और इट कुड बी वन ओनली. तो एग्जाम में आप क्या करेंगे, व्हाट विल यू मार्क इन एग्जाम? You will mark neither one nor two by following the SOP, by following the thumb rule. Is it clear? Yes. Next question. With reference to the Changpa community in India, consider the following statement. Changpa, tribal community. The communities in the news. Tribal communities in the news. आपको अलग से अगर कोई community का नाम न्यूज़पेपर में आ रहा है तो आपको देखना होता है. Recently हमने एक ट्राइबल कम्युनिटी का नाम न्यूज़पेपर में पढ़ा हुआ था. एनीवन रिमेंबर? विद रिस्पेक्ट टू देयर हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन, देयर अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. याद है, हमने पढ़ा हुआ था. और ये जो वर्ड है ट्राइबल कम्युनिटी, चंपा, चंपारण सत्याग्रह, ये सब हिस्ट्री में भी आता है. मुंडा अपराइजिंग. यस, यू आर राइट समीन. बट ट्राइबल कम्युनिटीज मतलब होते हैं आदिवासी, और इंडिया में अलग अलग एरिया में आदिवासी कम्युनिटीज रहते हैं. तो कुछ आदिवासी कम्युनिटी के नाम कुछ वजहों से न्यूज़पेपर में आता रहता है. तो जब भी अगर कोई ऐसे कम्युनिटी का नाम न्यूज़पेपर में आ रहा है तो वेयर एग्जैक्टली दे आर लोकेटेड आपको पता होना चाहिए. जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के कुछ ट्राइबल कम्युनिटी का नाम न्यूज़पेपर में आ रहा था. छत्तीसगढ़ के कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज का नाम न्यूज़पेपर में आ रहा था. हो सकता है दे माइट बी प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज, और दे माइट बी प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज, सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सेट्रा. तो यहाँ पर लिखा है, जैसे मणिपुर के कुछ ट्राइबल कम्युनिटी का नाम बार बार न्यूज़पेपर में आ रहा था, याद है? हो कम्युनिटी, या कुकी कम्युनिटी, मैतेई कम्युनिटी, राइट. तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैतेई कम्युनिटी या हो कम्युनिटी आर रिसेंटली सीन इन द न्यूज, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू दैट. ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया दैट इज विद रिस्पेक्ट टू चांगपा कम्युनिटी. चांगपा है, जैसे भूतिया कम्युनिटी, या उसके अलावा हमने देखा था गारो खासी जैंतिया, जैंतिया कम्युनिटी, गारो कम्युनिटी. ऐसे कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज हैं. मेजॉरिटी ऑफ दिस ट्राइबल कम्युनिटीज आर they are more what you can say prevalent in northeastern state of India, right? तो चांगपा कम्युनिटी क्या क्वेश्चन पूछा गया? they live mainly in the state of उत्तराखंड. चांगपा कम्युनिटी क्या उत्तराखंड कम्युनिटी में रहते हैं, ऐसे पूछा जा सकता है. Now you will go and check it out, the communities which are living in Ladakh and Leh region, because वहां के ही कम्युनिटी के लोग 6th शेड्यूल में ऐड करने के लिए डिमांड कर रहे हैं. डू यू रिमेंबर? यस सर. राइट. लद्दाख रीजन में कुछ कम्युनिटीज हैं जिनकी मदद से इंडिया ने चाइना को रोका हुआ था. सागर, यू रिमेंबर व्हेन देयर वाज द क्लैशेस हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड चाइनाज आर्मी? तो उस समय में वहां के लोकल ट्राइबल कम्युनिटी की मदद से क्या किया गया था? चाइना को रोका गया था. और हमने डिस्कस भी किया था
कि we need to take the help of the tribal community which are located in Ladakh region to create a what you can say proper border management to protect and defend our border in the Ladakh region, right? तो ऐसे जो ट्राइबल कम्युनिटीज के नाम जो न्यूज पे आते हैं वो आपको देखना होता है। तो ये चांगपा क्या ये उत्तराखंड में है। आज आप जाकर क्या देखेंगे, ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ लेह एंड लद्दाख रीजन। विल यू डू दैट, नोट इट डाउन, ये आपको करना है। आई एम एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन दिस ईयर्स एग्जाम। कम्युनिटीज ऑफ द मणिपुर रीजन, देन कम्युनिटीज ऑफ द छत्तीसगढ़, वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दे अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा गया है with reference to the Champa community in India, consider the following statement. They live mainly in the state of Uttarakhand. Second, they rear the Pashmina goats and they yield the fine wool. वो पश्मीना गोट को रियर करते हैं, उनका यही काम है। एंड दे आर केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ स्केड्यूल्ड ट्राइब, तो उन्हें स्केड्यूल्ड ट्राइब के कैटेगरी में क्या किया गया, ऐड किया गया। ना किसी भी स्टेट में कोई कम्युनिटी स्केड्यूल्ड ट्राइब में होगा या नहीं होगा, ये डिसीजन कौन लेता है, पॉलिटिका पर्सन, प्रेसिडेंट। yes they are president ने रहता है, right? तो ये चांगपा community is a scheduled tribe. It is located in which state? Any idea कौन से स्टेट में चांगपा community है? लद्दाख लद्दाख में है। सो उत्तराखंड रॉन्ग है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जब भी ऐसा स्टेटमेंट दिया जाता है that they live in mainly उत्तराखंड, तो लाइकली मिस्टेक यहाँ पर होते हैं। स्टेट का नाम यूपीएससी नॉर्मली क्या करता है, रॉन्ग करता है, राइट? तो दे लिव मेनली इन द स्टेट ऑफ लद्दाख। अच्छा, मैंने अभी आपको कहा था न्यूज़पेपर में आपको आया हुआ था और चेक करना है। एंड दे फॉलो द बुद्धिस्ट रिलीजन, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन लद्दाख दे फॉलो द बुद्धिस्ट रिलीजन, राइट? सो दे रियर द पश्मीना गोट। बुद्धिज्म। हाँ, वो वहां के लोग बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो लेह लद्दाख में क्या वहां पर जो गोट फॉलो किए जाते हैं, मतलब यहाँ पे जो गोट रेयर किया जाता है पश्मीना गोट्स हैं। इज इट करेक्ट? ठीक है, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है तो यू कैन एलिमिनेट 1, यू कैन एलिमिनेट डी। ऑप्शन वुड बी 2 and 3 ओनली एंड 3 ओनली। थर्ड स्टेटमेंट है दैट दे आर केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब। यस, इट इज राइट। तो थर्ड अगर करेक्ट है तो या तो आंसर 3 ओनली होगा या 2 ओनली होगा। तो गो एंड चेक इट आउट, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ द पीपल ऑफ दिस चांगपा करेक्ट सर, पश्मीनी गोट है इसका। ओके, सो 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? बट यहाँ पे हमें क्या देखना है? नो, फर्स्ट इज इनकरेक्ट है ना। यस, तो आपको एक अलग से पेज बनाना है। यू हैव टू मेक अ सेपरेट पेज, कम्युनिटीज इन द न्यूज, स्पेशली व्हिच कम्युनिटीज इन द न्यूज? ट्राइबल कम्युनिटीज इन द न्यूज। हैव यू मेड अ सेपरेट पेज फॉर दिस श्वेता? नो सर। नो, मेक अ सेपरेट पेज। और जब भी कोई ट्राइबल कम्युनिटी का नाम न्यूज़पेपर में आता है आपको ऐड करना है। लद्दाख रीजन की चांगपा कम्युनिटी का नाम आया हुआ था न्यूज़पेपर में जब वहां के लोग क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, राइट? यस सर। चलिए, अपार्ट फ्रॉम चांगपा देयर आर सम अदर कम्युनिटीज एज वेल इन लद्दाख, लाइक बाल्टी कम्युनिटी है, देन ड्रोकपा है, देन देयर आर सम लाइक बेडा, पुरीगबा एटसेट्रा। ये आपको चेक करना है। क्लियर? Yes. चलो, now let's move on to next page. Which of the following have the coral reefs? Coral reef islands. Do you remember coral reefs कैसे फॉर्म होते हैं? मैंने आपको एक्सप्लेन किया था when I was explaining you the Andaman and Nicobar islands and Lakshadweep islands. So which islands are made up of coral reefs? Lakshadweep islands or Andaman and Nicobar islands? Lakshadweep islands, right? तो लक्षद्वीप आइलैंड उससे बने हुए हैं, बट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी कुछ हिस्से कोरल रीफ से बने हुए हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि which among the following have coral reefs? Andaman and Nicobar islands are also having coral reefs. Gulf of Kutch, Gulf of Mannar, Sundarban. Gulf of Mannar में तो है, Gulf of Mannar, of course Gulf of Mannar is known for coral reefs. I'm not sure whether they are located in Sundarban, because Sundarban is located well above 23 and half degree Celsius. और हमने देखा है वेस्ट बंगाल the coral reefs are developed, एक concept है सागर, you know that the coral reefs are developed between the tropical region, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैन्सर आणि ट्रॉपिक ऑफ कॅप्रिकॉन च्या दरम्यान याच एरियामध्ये कोरल रिफ्स बनत असतात. So since Sundarban is located above the you can say the tropic of Cancer, तो सुंदरबन में नहीं हो सकता है. तो we can eliminate option D, we can eliminate option 4, we can 1, 2, 3,
and 1 and 3. The answer will be 1 and 3 या 1 2 3 होना चाहिए. Gulf of Kutch, I don't think so that Gulf of Kutch में ये भी ऊपर ही है ना, गुजरात में ऊपर है. भी है और टेम्परेचर वहां पे ज्यादा होता है. और गल्फ ऑफ कच्छ इज नॉट लोकेटेड नियर द कोस्ट, या इट इज नॉट Yes. लोकेटेड इन द ओशन. सो आंसर विल बी A and 3. 1 and 3 only should be the answer of this question. Anyways, I am eliminating it. बहुत सारे लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा है how I am eliminating it, but don't worry. बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे. So 1 2 3. 1 2 3 ऑफिशियल आंसर की में 1 2 3 है. Yes. ओके, ठीक. Fine. Now let's move on to question number 43. Question number 43 is also related to geography, but again we have not done the. ठीक है, हम उसको सॉल्व कर ही लेते हैं. इन इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है. द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन म्हणजे काय? सॉइल इरोजन मीन्स डिटोरेटिंग सॉइल क्वालिटी या सॉइल फर्टिलिटी. इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज असोसिएटेड विथ विच अमंग द फॉलोइंग. म्हणजे भारतामध्ये मातीचा जो क्षय आहे, मातीची जी क्वालिटी आहे, ती खालीपैकी कुठल्या ऍक्टिव्हिटीमुळे काय होते, खराब होते असं विचारलेलं आहे. मातीचा क्षय होतो असं विचारलेलं आहे. टेरेस कल्टिवेशन. टेरेस कल्टिवेशन से सॉइल इरोजन होगा या सॉइल कंजर्वेशन होगा? सागर, टेरेस कल्टिवेशन मीन्स कल्टिवेशन इन दिस, राइट? टेरेस कल्टिवेशन म्हणजे अशा प्रकारे टेरेस बनवून ऍग्रिकल्चर जेव्हा शेती केली जाते तर तिथे मातीचा क्षय जास्त होईल का मातीचा संरक्षण जास्त होईल? तो दिस इज रॉन्ग. अगर ये रॉन्ग है तो आप क्या करेंगे? यू विल एलिमिनेट दिस, यू विल एलिमिनेट दिस, यू विल एलिमिनेट दिस. आंसर विल बी 2 ओनली. इजी टू फाइंड आउट आंसर, बट इसके लिए टू फाइंड आउट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यू नीड टू नो व्हाट इज टेरेस कल्टिवेशन and how the terrace cultivation helps in conservation of the soil. या बेसिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी में जब हम पढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालना इजी होता है, राइट? इज सॉइल इरोजन एसोसिएटेड विद डिफॉरेस्टेशन? यस और नो? डिफॉरेस्टेशन से होता है. एसोसिएटेड विथ सॉइल इरोजन पूछा है ना? टेरेस कल्टिवेशन तो नहीं है. 2 है. ट्रॉपिकल क्लाइमेट? नो, आई डोंट थिंक सो. Equatorial climate, yes, not tropical climate. So 2 only is the correct answer of this question. Second है the seasonal reversal of the wind. कल ही हमने डिस्कस किया था, याद है? कल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के क्लास में हमने डिस्कस किया था seasonal reversal of the wind. That is मौसम. That is monsoon. You remember? Yes. So seasonal reversal of the wind is a typical characteristics of which type of climate? Is it a characteristics of equatorial? Is it a type of Mediterranean? Is it a characteristics of the monsoon type of climate? Or is it a type of all the above climate? Seasonal reversal कहाँ पर होता है? इंडिया में ही होता है. And that is what is a very easy question. Those who have attended my geography of India class, those who have attended my GC Leong classes, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Nandini, have you attended my geography class? Yes, sir. Very good. मैं आंसर करते हैं? हो सर. Very good. Consider the following rivers. आपकी वॉइस डबल आ रही है. आप जो बात कर रहे हो वो डबल सुनाई दे रहा है सर बीच बीच में. हाँ, जब भी कोई अनम्यूट करता है तो उस समय में वो दोबारा आवाज आती है. When someone unmutes. Clear? अब आ रही है क्लियर से? हाँ. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स. रिवर सिस्टम हमने पढ़ा हुआ था, याद है? समीन, यू रिमेंबर? रिवर्स ऑफ इंडिया हमने पढ़ा था. इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, गोदावरी रिवर, कावेरी रिवर सिस्टम, महानदी रिवर सिस्टम, राइट? क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द अबव रिवर फ्लोज थ्रू अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश में कौन से रिवर फ्लो होते हैं, क्वेश्चन पूछा गया. तो दिस इज अगेन ए क्वेश्चन ऑफ मैप बेस्ड क्वेश्चन. तो एग्जाम से पहले आपको क्या करना होता है? पूरा इंडिया का मैप एक बार अच्छे से देखना होता है. इंडिया के कौन से स्टेट से कौन सी रिवर फ्लो हो रही है, कैसे फ्लो हो रही है, रिवर्स, माउंटेन्स, लेक्स, सिटीज, रोड्स, हाईवेज, वाटरवेज. जैसे कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट द नेशनल वाटरवे नंबर 1 फ्लोज.
क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे लावण्य. Yes. तो नॅशनल वॉटरवे नंबर 1 कुठल्या कुठल्या राज्यामधून जातो? यूपी, बिहार एंड बंगाल. Bingo. Am I right? Yes, sir. ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? दैट which among the above, sorry, which of the above rivers flows through अरुणाचल प्रदेश? बराक रिवर, लोहित रिवर एंड सुबनसिरी रिवर. आपको चेक करना. करेक्ट. बराक, लोहित रिवर तो होती है, हमने देखा हुआ. तो लोहित इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर, राइट. इवन बराक इज ऑल्सो देयर. तो सुबनसिरी, सुबनसिरी क्या ये अरुणाचल प्रदेश से आती है? सागर, एनी आइडिया? Yes, sir. So I think answer is all 1, 2, 3. Am I right? Lohit is Assam, sir. Oh, Lohit is in Assam. Sorry. No, sir. वो लोहित अरुणाचल प्रदेश में भी जाता है. सुबनसिरी, सिहांग, कामेंग, दिहांग एंड लोहित. Okay. What about Barak? No, sir. बराक is Barak is Assam and Manipur, sir. हाँ, Assam बराक and वहाँ पे है. Okay. So Lohit and Subansiri is the correct answer. Yes, sir. ठीक है. So 2 and 3 only. ठीक है. But anyways, इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ये समझ में आना चाहिए that UPSC is asking the questions with respect to what? The rivers, the lakes, mountain hills, etc. चलो. Now let's move on to next question. Question number 46. वेटलैंड से क्वेश्चन पूछा गया अगेन. हरिके वेटलैंड, केवलदेव घाना नेशनल पार्क एंड कोल्लेरू लेक, ये कहां पर लोकेटेड है? दैट इज हरिके वेटलैंड्स आर लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास एंड सतलज. केवलदेव घाना नेशनल पार्क आर लोकेटेड ऑन कॉन्फ्लुएंस ऑफ बानस एंड चंबल. चंबल रिवर, बानस रिवर याद है. केवलदेव घाना नेशनल पार्क है. कोल्लेरू लेक आर लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूसी एंड कृष्णा रिवर. तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एनवायरमेंटल studies combined with the map reading, combined with the geography. तो ज्योग्राफी का रिवीजन करते वक्त ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको करना है. बिफोर 15 days of the exam, you check such type of information. Where the national parks of important national parks of India located, where exactly they are located, उसके आसपास में कोई रिवर है या नहीं है, कौन से रिवर के कॉन्फ्लुएंस में है, कोई माउंटेन रेंज वहां पर है क्या, कोई आइलैंड्स वहां पर है. That's what you need to check it out. The uniqueness of the various national park and biosphere reserves and wetlands of India. Is it clear? सर इस लास्ट पेयर के ऊपर 2023 में क्वेश्चन पूछा था उन्होंने. Kolleru कोल्लेरू Lake. लेक Yes, the river डायरेक्टली Krishna directly feeds to the Kolleru Lake. यहाँ पे लिंक आपको दिखाई दे रहा है, right? The statement is correct or wrong? That was wrong, sir. That was wrong. So Kolleru Lake, confluence of the Musi and Krishna. So is it a confluence of Musi and Krishna or? वो स्टेटमेंट रॉन्ग था. ये करेक्ट हो सकता है. मूसी एंड कृष्णा. यस सर. वो डायरेक्टली बोला था, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग था. Which of the important city of India is located on the bank of river Musi? One of the important city of Andhra Pradesh or Telangana is located on the bank of river Musi. Which one is that? Hyderabad. Yes, sir. Hyderabad is located on river Musi. Okay. Anyways, तो मैप रीडिंग कैसे करने समझ में आ गया? What type of questions are being asked on related to map? चलिए. Question number 48. Cardamom Hills. You remember Cardamom Hills? So Cardamom Hills are located in South India, or they are located in East India, or they are located in West India, or they are located in North India or Central India? Cardamom Hills. You remember? South I told India. you Cardamom Hills are the southernmost hills of India. तो कार्डमम हिल्स कोरोमंडल कोस्ट, कल हमने कोरोमंडल कोस्ट के बारे में भी देखा था. कोरोमंडल कोस्ट आर लोकेटेड इन द ईस्ट और साउथ. दे आर लोकेटेड इन द ईस्ट. कोरोमंडल लेक मतलब ओडिशा से नीचे जो कोस्ट है उसको हम कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट. तो कार्डमम हिल्स रीजन कोरोमंडल कोस्ट इज रॉन्ग, राइट? Yes, sir. Second, Kaimur Hills. Are Kaimur Hills located in Konkan coast? No. This is also wrong. Kaimur Hills are the part of the central India, right? So this is also wrong. Mahadev Hills, central India, yes, this is true. Central India, MP के आसपास में महादेव हिल्स है, याद है? ज्योग्राफी डिवीजन में डिस्कस किया था.
Then Mikir Hills located in northeast India. This is also correct. Mikir Hills, Mikir, Mishmi, Dafla Hills northeast India में है. Garo, Khasi, Yes, sir. Jaintia Hills, Naga Hills, Mizo Yes. Hills, Lushai Hills. Right? कुछ some of the hills are located in Arunachal Pradesh, some are located in Nagaland, Mizoram, Meghalaya, etc. So this is correct. So 3 and 4 is the correct answer of this question. तो हिल्स, तो जब भी आप रिवीजन करोगे इंडिया का, तो हिल्स ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया, राइट, ये आप चेक करेंगे वो एग्जैक्टली कहां पर लोकेटेड है, कौन से राज्य में लोकेटेड है, कौन से स्टेट में लोकेटेड है, कौन से पार्ट में लोकेटेड है. इज इट क्लियर? हाँ. Yes. ठीक है. नेक्स्ट तुर्की. तुर्की का नाम सुना है आपने, न्यूज़पेपर में आता रहता है. तुर्की इज लोकेटेड बिटवीन ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी. ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, रिमेंबर? यस सर. तुर्की भी कंट्री है ना सर? यस, राइट. तुर्की एक कंट्री है. लगा तुर्किश अलग ना सर? सेम. तुर्की में रहने वाले लोगों को तुर्किश कहा जाता है. जैसे हाँ. इंडिया में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? इंडियन हिंदुस्तान. हाँ, हिंदुस्तानी, राइट. तो वैसे ही हिंदुस्तानी तुर्की में इंडियन. रहने वाले लोगों को तुर्किश कहा जाता है, हाँ, तुर्किश. राइट. जैसे ब्रिटेन में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? ब्रिटिश. ब्रिटिश, राइट. अमेरिका में रहने वाले लोगों को अमेरिकन. यस. तो वैसे ही है. बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन पूछा गया तुर्की ये जो कंट्री है कौन से दो सी के दरम्यान लोकेटेड है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया. तुर्की इज लोकेटेड बिटवीन ब्लैक सी और कैस्पियन सी, ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी, गल्फ ऑफ सुएज एंड मेडिटेरेनियन सी, गल्फ ऑफ अकाबा एंड डेड सी. सिमिलर ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? ईरान एंड ओमान और ईरान एंड Oman, sir. Oman. ईरान एंड ओमान. हमारे क्या ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज सेलेक्टेड. Yes, sir. ठीक है. व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सागर? तुर्की इज लोकेटेड बिटवीन विच टू सीज? कल के न्यूज़पेपर में हमने देखा था, वी हैव डिस्कस दिस इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. लाइक नॉर्थ इंडिया में जो भी हेलस्टॉर्म जो आया हुआ है, वन ऑफ द रीजन इज दैट द मॉइस्चर लेडन विंड्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी एंड मेडिटेरेनियन सी. रिमेंबर? और कल ही मैंने शायद आपको बताया था, गो एंड चेक इट आउट, वेयर एग्जैक्टली दिस ब्लैक सी, कैस्पियन सी एंड मेडिटेरेनियन लोकेटेड, और उसके आसपास के कौन से कंट्रीज हैं ये मैंने आपको चेक करने के लिए बताया था. यू रिमेंबर? Yes. Yes, sir. This country is located the Black Sea on the north and Mediterranean Sea on the south. Okay, Black Sea and Mediterranean Sea located Yes, between. it's their border with Mediterranean Sea. Okay, very good. So So if we know only this fact, we can easily find out the answer of this question. yes सागर. तो अभी आपको क्या करना है, प्लेसेस इन द न्यूज वो एग्जैक्टली कहां पर लोकेटेड है आपको देखना है. स्टेट ऑफ हॉर्मुज इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एनी अदर सिमिलर सच प्लेस व्हिच इज इन द न्यूज? Armenia. Armenia. Why Armenia was in the news? Shweta? Why it was in the news? Because Indian government was trying to bring the Indians, what you can say, इराण मध्ये जे काही अडकलेले जे काही भारतीय होते त्यांना आर्मेनियाच्या रूट मधून भारतामध्ये आणण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. Am I right? श्वेता? Yes, sir. खास करके इस बार का जो ये जो मिडिल ईस्ट वाला जो रीजन है, ये पूरा कंप्लीट मैप आप देखेंगे कौन सा कंट्री कहां पर लोकेटेड है. द होल ऑफ मिडिल ईस्ट, राइट फ्रॉम द कंट्रीज लाइक लेबनन, देन सीरिया, then you will see where Gaza is located, where Iran is located, where Israel is located, where Jordan is located, where the Kuwait is located, where Bahrain is located, where Saudi Arabia is located, where Yemen is located, where Oman is located. ये सारे चीजें आप देखेंगे. राइट. एक आइलैंड था गार्सियो डियागो ऐसा कुछ नाम था, वो डियागो गार्सिया which Iran has the attack. ये कौन से ओशन में लोकेटेड है ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इज इट लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन, इज इट लोकेटेड इन अटलांटिक ओशन, इज इट लोकेटेड इन आर्कटिक ओशन, इज इट लोकेटेड इन इंडियन ओशन, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. क्लियर? Yes, sir. So countries in the news,
places in the news, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. Again, one more interesting question. What is the correct sequence of the occurrence of the following cities in Southeast Asia as one proceed from south to north? South to north अगर हम जा रहे हैं तो नीचे में से कौन सी कंट्रीज लोकेटेड है जो पूछा गया है? बैंकॉक, हनोई, जकार्ता, सिंगापुर. So you can find out the answer to this question if you know Bangkok is the capital of Thailand and Thailand कहाँ पर located है आपको पता होना चाहिए. Hanoi is located in I think Vietnam. हो ची मिन सिटी ऐसे कुछ कहा जाता है शायद इसे. Then Jakarta is the capital of which country? Jakarta Island नीचे है सिंगापुर. तो I think Jakarta should be southernmost, south to north पूछा है ना उन्होंने. तो third three the answer could be like 3, 4, 1, 2 हो सकता है मे बी. Yes, sir. Yes. 3, 4, 1, 2 यस. तो कंट्रीज जो होते हैं साउथ टू नॉर्थ एंड नॉर्थ टू साउथ ऐसे क्वेश्चन वर्ल्ड मैप बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं ज्योग्राफी. क्लियर? ठीक है, लेट मी चेक इट आउट इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी इन 2020 14 that we are discussing 2014 question paper. कुछ ज्योग्राफीज के एप्लीकेशन बेस्ड एनवायरमेंटल स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन हैं. We will discuss it when we finish the environmental study basic topic. So there is no question on theory part. है ना वो मेडिटेशन सॉरी क्लाइमेट वाले टॉपिक के क्वेश्चंस थे. बट मेजॉरिटी ऑफ द ज्योग्राफी क्वेश्चंस आर एप्लीकेशन बेस्ड. In 2023-24 exam, they have asked questions on concepts of geography. सागा 23 and 24. यस सर, मैं भी वही देख रहा हूँ सर. मतलब जो 23, 24, 25 का क्वेश्चन पेपर बहुत थोड़ा बहुत थ्योरी पार्ट के ऊपर है, पूरा एप्लीकेशन ही है. Yes, this is application based. Anyway, so we'll stop it here now. Tomorrow we'll continue with the next topic. ठीक है, ये जो application based questions है सागर, इसको study करने के बाद भी you might be able to ask, you might be able to find out the answer of 2026 prelims exam, because हो सकता है कि application will also help you in finding out the answer of theoretical questions as well. Yes sir. Correct? चल, तो we'll stop it here. We'll continue tomorrow as per our regular schedule. सर 8 टाइम कंटिन्यू करते हैं सर अभी से. Yes, most probably 11 to 12:30 we will take it. Right? All of you okay with this timing? 11 o'clock in the morning? Yes, sir.